Okay, good evening, students. How are you all? Hope everyone is doing good. Yes, all good. Okay, okay, all right. Um, Students, before we start with our class, I want two things you all to do. First thing, you will write down your examination tentative date when your exams are starting. Second, you will write down the chapter number. Okay, the chapters from science, what you're going to get for exam. These two things I want you all to be written. When is your science paper? When is your unit test starting basically? And your this chapter number. I'm giving you 1 minute to just type that. Okay, answers what I'm getting in the chat box are from 19th August or 20 August. All right. When is your science paper? 24th August. Okay, 17 August. All right. By the way, when is your science paper? And what is the portion for science? Both, write down science 1 and science 2, both portion. Write down both the portion. For science 1 and for science 2. Timetable, okay, is not given yet. Okay, fine, fine. So tentative dates is 17th August onwards. Okay. And a portion you must be knowing, right? Okay. 1, 2, science 1 and 2, 2, 6 and 7. Okay. All right. Not having timetable, but portion you must be having, right? And this is your unit test, right? Yes, SSC board. Okay. Acha, this is your unit test. All right. So first chapter is over. First chapter, I think Varsha ma'am must have done, no? Acha, first chapter is into process. Not done. It is into process, right? Okay. I'll start with the second chapter. Today we will start with the second chapter. Okay? All right. All right. Chalo. So, before beginning with second chapter, I would like to tell you that um, today we will have a class for 1 hour and 30 minutes. Is that okay with everybody? If we have 1.5 hour ka class, if you're okay with it, then only I'll take up the class. Okay with everyone? Yes, all right. And second thing is that if network glitches arises, then we will have a class for 1 hour. If there are no network glitches, we'll continue for 1.5 hours. Is that okay with everybody? Hmm? ठीक है, चलो. All right. Okay, so before beginning with our chapter, now one question I would like to ask you all is, whatever you eat, okay, whatever you eat, any food you eat, anything you eat, what happens? क्या होता है उसका? यस, जब भी आप कुछ खाना वाना खाते हो तो फूड कहाँ जाता है? यू मे पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. जो भी खाना खाते हो आप, तो खाना जाता कहाँ है? यस, स्टमक. ऑल राइट. स्टमक में जाके उस खाने का क्या होता है? फ्रॉम इन आवर माउथ, देन इन स्टमक इट डाइजेस्ट. आफ्टर डाइजेशन व्हाट हैपेंस? डाइजेस्ट क्यों होता है खाना? डाइजेशन होने के बाद हमको उस खाने से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिशन को हम अदर वर्ड्स में एनर्जी बोल सकते हैं. यस. ओके. ऑल राइट.
करेक्ट एवरीवन। न्यूट्रिशन को हम दूसरे वर्ड्स में एनर्जी बोल सकते हैं। जो भी हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जिस तरह का खाना खाते हैं हम, उस तरह के हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। करेक्ट। अब ये एनर्जी किस लिए चाहिए? हमको एनर्जी की जरूरत है, किस लिए चाहिए हमको ये एनर्जी? यस, फॉर वर्किंग। वेरी गुड। सो वी विल नीड एनर्जी टू डू वर्क। Correct. And what are the different types of energy? वो तो आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, लेकिन what are the different types of work done? Right? क्या क्या होता है, वर्क क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स में वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट यू विल लर्न नाउ इन आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। एवरीबडी रेडी फॉर इट? Yes? Okay. So I'll start sharing my screen. Hmm? Okay, 1 minute. I'll start sharing my screen. I'll have to share my screen. Okay, so there we are. Everybody can see the textbook. We are going to have a chapter that is work and energy. Everybody can see my textbook, everybody? Yes? All good. Okay. So, work and energy. Now, we are going to learn about what is work, what is energy, एनर्जी के टाइप्स क्या है। जैसे कि एक टाइप है जो हम डेली यूज में, लाइफ में यूज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फ्री फॉल। इन टॉपिक्स को हम 9th स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। ठीक है। कैन यू सी द पिक्चर हियर? यू कैन ऑब्जर्व वेरियस एक्टिविटी डन, जैसे आपको होमवर्क करना है, या आपको खेलना है, कहीं ट्रैवल करना है सॉरी, टीवी देखना है, या आपको कोई भी चीज उठानी है। दीज आर द वेरियस एक्टिविटी जिसे हम वर्क कहते हैं। राइट? Yes or no students? You can write down your answers in chat box. Yes, इसे हम वर्क कहते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज, राइट फ्रॉम योर मेंटल एक्टिविटी से लेके फिजिकल एक्टिविटीज तक, कुछ भी करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। करेक्ट? अगर आपको बैठना है चेयर पे, अगर आपको कहीं चलना भी है, अगर आपको खड़े भी होना है, तो भी आपको एनर्जी की जरूरत है। करेक्ट? कभी अगर आप फास्ट करते हो, ओके, तो फास्टिंग करते हो तो वो टाइम पे क्या आपने नोटिस किया है कि आपको वीकनेस फील होती है, चक्कर जैसे लगता है? यस और नो स्टूडेंट्स? यस। तो वो टाइम पे आपको क्यों वीकनेस आती है? बिकॉज यू डोंट हैव इनफ न्यूट्रिशन। यस, करेक्ट। इनफ न्यूट्रिशन, खड़े होना, सोना, एवरीथिंग, मेंटल वर्क, सोचना, फिर बैठना, इवन इफ यू आर सिटिंग ब्लैंक, देन टू योर बॉडी इज डूइंग वर्क इनसाइड, राइट? आपकी बॉडी अंदर के अंदर काम करती है, राइट? इमोशनल से लेके फिजिकल से लेके मेंटल, ये सारे काम एनर्जी के बेसिस पे होते हैं। करेक्ट और नॉट? और ये एनर्जी हमको मिलती है हमारे खाने से। और ये खाना कहाँ जाके पचता है? फ्रॉम स्टमक इट रीचेस टू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, ब्लड से हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं, वहां तक वो खाना पहुंचता है। राइट? सो अगर आप कभी खाते नहीं हो, या फिर आप कभी फास्टिंग करते हो, या कोई रीजन की वजह से आप खाना मिस करते हो, तो आपकी बॉडी एनर्जी लेवल को मिस करती है। करेक्ट? जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। एम आई करेक्ट? Okay, let us come back to our physics, that is work and energy. Now, from a scientific point of view, we can say these all people are doing work. Yes or no, students? From a scientific point of view, in the picture? Okay. Now, generally, any mental or physical activity is referred to as work. अगर आप दिमागी काम भी करते हो, जैसे टीचर्स करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेसन प्लान बनाना, लेसन पढ़ाना, लेसन को एक्सप्लेन करना, चीजों को पढ़ना पढ़ाना, ये सारा मेंटल वर्क है। ठीक है? तो कोई भी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो, इट इज रिफर्ड टू एज वर्क। when we walk or run, the energy in our body is used to do necessary work. Do you agree with me, children? कभी हम चलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, बैठते भी है, खड़े भी होते हैं। ठीक है? अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपकी बॉडी अंदर के अंदर वर्क करती है। ठीक है?
we say that a girl who is studying is working or performing a work technically, but that is mental work. Do you agree with me, children? Yes, this girl that is studying or doing anything is called as mental work. Sorry for that. एक मिनट, कहाँ गया edit वाला option? Sorry, once again. Okay, 1 minute, children. 1 minute. I'll have to stop sharing the screen. One minute, children. एक minute. Textbook has gone away. Children, can you see my screen shared? No, ना? Screen sharing नहीं हुआ है ना? Okay. 1 minute, children. ओके, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा है, आपके पास आपके टेक्स्ट बुक्स है, राइट? यस और नो, चिल्ड्रन? तो अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा है, तो एनीथिंग विच इज गिविंग विच इज यूटिलाइजिंग अ एनर्जी, तो हम बोलते हैं इट इज यूटिलाइजिंग द वर्क डन. ओके, या फिर देयर द वर्क इज डन. शेयरिंग माय टेक्स्ट बुक once again. Now I'll share. 1 minute. Hmm. Okay, there you go. Can you see, everybody? My screen is shared, my textbook is shared with you. Yes, ना? हाँ, ठीक है, चलो. Now, in physics we deal with physical work. जो हम physics में पढ़ रहे हैं, that is having a different type of work. Okay? That is called as a physical work. जो भी हम physics में deal कर रहे हैं अभी, जो भी हम अभी करने वाले हैं, अलग अलग types, etc., etc. So इसे हम कहते हैं physical work. However, this, okay, in physics we deal with the physical work. Now work has a special meaning in physics. जैसे कि work is said to be done when force is applied on an object which causes displacement of the object. अभी आपने physics में last time पढ़ा होगा. What do you mean by displacement? Anybody? You can put in the chat box, class. What do you mean by displacement? Dis word को divide कर दो. Displacement. What do you mean by displacement, children? Yes. Minimum distance. Okay, minimum distance. ठीक है. What else? और कुछ? The minimum distance traveled by an object. All right. Word का मतलब क्या है? Displacement. Only minimum distance. क्या मैं बोल सकती हूँ अगर मेरे पास कोई भी अभी ऑब्जेक्ट है, राइट? अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर पा रही हूँ, आई विल कॉल इट एज अ डिस्प्लेसमेंट. ओके, यानी कि वो अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है. अग्रीड? तो अगर फिजिक्स में हम बोलते हैं कि हमारे पास जो वर्क हो रहा है, अगर हम फिजिक्स में बोलते हैं हमारे पास जो वर्क हो रहा है, और वो वर्क कभी होता है जब वो अपनी जगह छोड़ के कोई और नई जगह पे प्लेस हो जाए, या फिर वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे अपनी जगह बना ले. सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन इट इज मूविंग वी कॉल इट एज अ displacement. Do you agree with me, children? Everybody? Yes? Okay. All right. So coming back to the topic here, the work is said, अभी ये definition है इसका, please underline this. Work is said to be done when a force is applied on an object which causes the displacement of the object. ठीक है? Now here what will happen? Displacement of the object में क्या होगा? We have already learned that work done by force acting on an object is product of the magnitude of the force and the displacement of the object. आपको ये लाइन को अंडरलाइन करना है, children. That
force acting on an object is product का मतलब multiplication of force and displacement. और ये जो displacement होगा वो कहाँ होगा? जिस direction में हम force apply कर रहे हैं उस direction में displacement होगा. Do you agree with me children? जिस direction में हम force apply कर रहे हैं उसी direction में displacement होगा. Everybody is agreeing with me? Yes? Yes, correct. So coming back to our topic here, what are different types of force and their examples जो हम अभी यहाँ पे देखेंगे. इसके पहले हम एक example देखते हैं. मीनाक्षी wants to displace a wooden block from point A to point B. ठीक है, तो मीनाक्षी ने point A लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, उसको वो डिस्प्लेस करना है यानी कि वुडन ब्लॉक को शिफ्ट करना है पॉइंट A से पॉइंट B तक. ठीक है, along the surface of a table. और ये वुडन ब्लॉक कहाँ रखा है? On the surface of a table. अभी ये फिगर किसमें बताया है? यहाँ पे. You can see here figure A. Yes, 2.2 displacement of an object in figure A. Everybody can see in your textbooks. Please refer your textbook children जो आपके पास ऑलरेडी है. Yes, ठीक है, तो यहाँ पे मीनाक्षी को पॉइंट A से पॉइंट B तक टेबल के ऊपर वुडन ब्लॉक को डिस्प्लेस करना है यानी कि शिफ्ट करना है. She has used a force F for that purpose. एक certain amount of force उसने अप्लाई किया है जिसको हमने नाम दिया force F for that purpose. Correct? Has all the energy she has spent used to produce acceleration in the block? Which forces have been overcome in this energy? क्या उसने पूरा का पूरा अपना जोर लगाया है या जितना वुडन ब्लॉक को शिफ्ट करने के लिए जोर लगता है उतना ही लगाया होगा? What is your opinion? Has she applied entire energy, पूरी बॉडी लगा दी, या उस वुडन ब्लॉक को शिफ्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उतनी ही एनर्जी लगा दी? यस, जितनी एनर्जी लगती है उतनी लगाई होगी. यस और नो चिल्ड्रन? यस, करेक्ट. सो यहाँ पे दिस इज which forces have been overcome in that energy. तो हम इसके लिए देखेंगे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं. एक तो A वाला एग्जाम्पल है, एक B वाला एग्जाम्पल है पुली, और एक C वाला एग्जाम्पल है जब कार को टो किया जाता है या कार को हेल्प दिया जाता है. दिस ऑल 3 एग्जाम्पल्स जिसमें अलग अलग फोर्सेस लगाए गए हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जहां से फोर्स लगाया होगा उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा. अग्रीड एवरीबडी? यस, ओके, कैन वी गो अहेड? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, इसके पहले यहाँ पे वी हैव टू यूज आवर ब्रेन पावर. We have learned how to calculate the work done on an object when displacement is in the direction of force. But if displacement is not in the direction of force, how do we calculate the amount of work done? अगर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में है, तो हमने वो देखा है इस फॉर्मूला से, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट अगर ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू सी हाउ इट इज डन. सो एवरीबडी इज रेडी फॉर दैट? यस, लेट अस गो अहेड. ठीक है, we must have seen the events depicted in picture B and C above. यहाँ पे these are few events. ठीक है, when a child pulls a toy with the help of a string, एक धागे से वो टॉय को पुल कर रहा है बच्चा, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, and in the direction of force is different from that of displacement. Displacement कहाँ से हो रहा है? 1 minute. One minute children, huh? Just hold on. ओके, अभी यहाँ पे बच्चा जो है टॉय को पुल कर पा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है इसका? बी और सी में जिस डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है उसी डायरेक्शन में टॉय और कार जा रही है, दोनों भी केस में. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? यस और नो? यस, ओके. नाउ when a child pulls a toy with the help of a string, the direction of force is different from that of displacement. Similarly, when a large vehicle tows a small vehicle, okay, the direction of force and the displacement are different.
फोर्स जो है व्हीकल पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. Let us see how to calculate work done in such cases. When a child pulls a toy cart, force applied along the direction of the string while the cart is pulled along the horizontal surface. अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लास, ओके, 1 मिनट. ऐसे क्यों हो रहा है? लास्ट टाइम तो हो रहा था एडिट. 1 मिनट क्लास. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लास, सो यहाँ पे व्हेन अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय और अ कार्ट, द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. अभी यहाँ पे फोर्स अगर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सो ये डायगोनल फोर्स अप्लाई हो रहा है. कैन यू सी हियर चिल्ड्रन? ये डायगोनल अप्लाई हो रहा है, वो सरफेस के ऊपर से अप्लाई हो रहा है फोर्स. सी के डायरेक्शन, सी के भी एग्जाम्पल में वैसे ही हो रहा है. When a child pulls a toy with the help of a string, the direction of force is different. Now here, force applied along the direction of the string while the cart is pulled along the horizontal surface. In this case, in order to calculate the amount of work done, we have to convert applied force into the force acting along the direction of the displacement. Let F be the force and F1 be the component in the direction of displacement. F1 को हम component रखेंगे changing, जो change होते रहेगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे, और F को हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना रखेंगे. S को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. सो अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. W is equal to F1 into S. Do you agree with me, children? W work done will be is equal to F1, that is changing force or changing the level, into displacement, changing the place. ठीक है? The force F is applied in the direction of the string that is at an angle with the horizontal. Let theta be the angle. हम हमेशा angle को theta रखते हैं. आप लोगों ने trigonometry में पढ़ा होगा. Yes? Trigonometry में आपने सभी ने पढ़ा होगा, right? Theta is called as a angle. Okay, कोई भी एंगल अननोन रहेगा, we call it as a theta. We represent it by theta. Theta be the angle of the string that makes in the horizontal. We can determine the component F1 of this force which acts in the horizontal direction by means of trigonometry. Trigonometry कभी यूज होता है जब 3 डायरेक्शनल फिगर बनता है, तभी trigonometry यूज होती है. We can see here, यहाँ पे हमारा फोर्स नीचे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है वो F1 है. अगर आप ऊपर देख रहे हो स्लैंटिंग लाइन पे, वो F फोर्स है. ठीक है, और ये जो एंगल F1 और F के बीच में बन रहा है, दैट इज थीटा. ओके, ऑलराइट. अब जो एंगल बन रहा है उसके ऑपोजिट में जो हाइट बन रही है, दैट इज योर 90 डिग्री हाइट. वी कैन प्रेडिक्ट दैट. क्या हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? एक्यूरेटली नहीं, लेकिन फिगर को देख के बोल सकते हैं 90 डिग्री हाइट है वो सामने वाली. तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के हिसाब से अगर 90 डिग्री की हाइट बनती है F और F1 के बीच में, जो स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम उसे बोलते हैं बेस. ओके, नीचे वाली जो F1 वाली लाइन है वो बेस होगी, उसकी जो स्लैंटिंग लाइन है वो हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि जो उन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन बन रही है वो है 90 डिग्री लाइन. और इसी की वजह से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कॉस थीटा. ओके, ये कॉस थीटा कहां से आया? क्योंकि एक बनी है बेस, दूसरी बनी है हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हाइपोटेन्यूज एवरीबडी नो इज अ साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल. यस, सो ये जो बेस और हाइपोटेन्यूज बनी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए हम इसको कॉस थीटा करके फॉर्मूला लेंगे. कॉस थीटा के भी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे. F1 अपॉन F, बेस है F1 और हमारा हाइपोटेन्यूज है F. सो F1 को हम अकेला छोड़ेंगे. क्यों छोड़ेंगे अकेला? क्योंकि बेस के ऑपोजिट में जितना फोर्स अप्लाई हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट? फोर्स जो वर्क डन है वो हमको कैलकुलेट करना है. फोर्स तो हमने देख लिया, तो हमने F1 को अकेले छोड़ा और हमने क्या किया, जब
कॉस थीटा के साथ आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू के, तो मल्टीप्लाई होगा। दिस वर्क डन बाय F1 इज W इज इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा इंटू S। डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है ना, जब वर्क हुआ है तो वर्क के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, जगह भी चेंज हुई है पॉइंट A टू पॉइंट B। यस और नो? Yes. So here we have W is equal to F into cos theta into displacement. So final formula क्या बनेगा? W is equal to F into S into cos theta. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन हमको डालना है। एंटर योर कंक्लूजन अबाउट द वर्क डन फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे अगर 0 डिग्री होता थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे कितना कंक्लूजन आता, और cos थीटा 1 होता तो कैलकुलेशन करो, ये फॉर्मूला में डालो। W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, W इज इक्वल टू F इंटू एस। कितना होता कंक्लूजन क्लास? यस, ये तीनों की वैल्यूज मुझे दो आप लोग चैट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर दैट। यस क्लास। गिव मी द वैल्यूज, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। यस, नो वन, नोबडी क्लास, एम आई ऑडिबल? क्लास, जब तक मुझे वैल्यूज नहीं मिलते हैं मैं आगे मूव नहीं हो सकती हूँ। मुझे तीनों की वैल्यूज करके दो कैलकुलेशन में। टेक्स्ट बुक देखो अपना, तुमच्याकडे टेक्स्ट बुक असेल ना? आहे की नाहीये? आहे, त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला बघा। तुम्हाला फक्त व्हॅल्यूज रिप्लेस करायचेत जे ऑलरेडी इकडे दिलेले आहेत। प्रत्येक केसमध्ये वेगवेगळी व्हॅल्यू दिली आहे, फक्त त्याचं कन्क्लुजन अराइव्ह करायचंय। बोला, इट्स पॉझिटिव्ह? ओके, ऑल राइट। सो वी हैव कंक्लूजन दैट W इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, नाउ यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क क्या होते हैं क्लास? आई एम वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग, आई वांट आंसर फॉर ऑल दोस थ्री। ठीक है, बिफोर एंडिंग द सेशन मुझे तीनों का आंसर चाहिए। इन द मीन टाइम विल मूव अहेड। यूनिट ऑफ वर्क। अब वर्क का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या देखना है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था पहले। यस और नो? एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क इज यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। तो दोनों को मिला के क्या हुआ? न्यूटन मीटर। अगर आप यूनिट ऑफ फोर्स बोलेंगे इट्स न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर को क्या मिला के बोलते हैं? जूल बोलते हैं, JOULE। ओके, therefore 1 joule is equal to force of 1 newton displaces an object through 1 meter in the direction of force. Okay, and the amount of work done on the object is 1 joule. ओके, तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे दिया है। ये तो था एसआई यूनिट। ठीक है, अभी सीजीएस यूनिट में क्या लिखेंगे? द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, सबसे लोवेस्ट यूनिट, एंड दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। करेक्ट? thus the unit of work done is dyne centimeter and this is called as an erg. SI में जूल बोलते हैं और CGS में erg बोलते हैं, ERG erg। erg का मतलब क्या है? if force of one dyne displaces an object, 1 सेंटीमीटर भी डिस्प्लेस करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, so we call it as a 1 erg. ओके, सो 1 erg कैलकुलेशन वाइज कैसे दिया जाता है? 1 erg इज इक्वल्स टू 1 डायन
into 1 centimeter. This word is pronounced as dyne, D-Y-N-E, dyne. Okay, so 1 erg is equal to 1 dyne into 1 centimeter. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगर हम फाइंड आउट करेंगे, रिलेशनशिप मतलब डिफरेंस, दैट इज 1 न्यूटन अगर बोलेंगे तो 10⁵ डाइन होगा, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर होगा. देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर. ओके, 1 जूल को एज इट इज लिखेंगे, न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट करेंगे, सो 10⁵5 इंटू 10⁵2 बनेगा 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर. सो 1 जूल का क्या मतलब है, 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर, विच मीन्स 10⁵7 erg. एवरीबडी क्लियर विद दिस रिलेशनशिप? यस, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? Are we good with here? Everybody? Can you repeat? All right. I so wish to use this whiteboard यहाँ पे. एक second ना, I'll just try. फोन ठीक है. Anyways. ओके, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आई विल रिपीट अगेन. रिलेशनशिप यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे जूल और सबसे लोएस्ट है अर्ग. डू यू अग्री विथ मी? सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे जूल और सबसे लोएस्ट है अर्ग. एवरीबडी अग्रीज विथ मी? तो इसका मतलब ये हुआ, ये डिफरेंस किस तरह का हुआ है, सबसे हाईएस्ट हुआ किलोमीटर्स और सबसे लोएस्ट हुआ मीटर्स. समझ पा रहे हो दोनों का रिलेशनशिप? जो जूल है वो किलोमीटर्स है और जो अर्ग है वो मीटर्स है. ओके, ठीक है. नाउ हियर इफ यू सी, कमिंग बैक हियर, वर्क का मतलब क्या है? वर्क का मतलब है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट? वर्क का मतलब है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये क्लियर है सभी को? ठीक है. अभी इस वर्क को हम दो सिस्टम में लिख सकते हैं. सबसे हाईएस्ट सिस्टम में लिख सकते हैं जो कि एसआई सिस्टम है, और सबसे लोएस्ट सिस्टम में लिख सकते हैं जो कि सीजीएस सिस्टम है. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? ओके, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हाईएस्ट सिस्टम से, दैट इज 1 जूल. अभी वर्क जो फोर्स है, ये फोर्स है, इसका यूनिट क्या है? ये जो फोर्स दिया है यहाँ पे, इसका यूनिट है न्यूटन. ओके, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, प्लेस चेंज करने का यूनिट है मीटर. ओके, सो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर. डू यू अग्री विथ मी? तो 1 जूल का मतलब क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ठीक है, सो यहाँ पे हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर देख लिया. ये तो था हमारा एसआई यूनिट का. अब सीजीएस में ये तो हाईएस्ट यूनिट हो गया. ठीक है, अब सीजीएस में लोएस्ट यूनिट में हमने क्या देखना है? लोएस्ट यूनिट में हमने देखना है कि फोर्स है जो कि जो न्यूटन में काउंट होता था हाईएस्ट यूनिट में, वो फोर्स अभी लोएस्ट यूनिट में डाइन में काउंट होगा. ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट मीटर में काउंट होता था लोएस्ट यूनिट में सेंटीमीटर में काउंट होगा. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? यहाँ तक सभी को क्लियर है? जिनको डाउट था उनको भी क्लियर है? ठीक है, चलो लेट अस गो अहेड. अभी यहाँ पे जब सीजीएस यूनिट में हमने देखा, तो अगर आपका डाइन और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा अर्ग. ओके, 1 अर्ग बनेगा जो कि लोएस्ट यूनिट है. ओके, ये आप मान लो. अर्ग कहाँ से आया, किसने इन्वेंट किया, वो साइंटिस्ट को जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे तभी देख लेंगे, जूल और अर्ग का, कि उन्होंने क्या किया था उनकी लाइफ में, जो उन्होंने वर्क और एनर्जी के लिए ये यूनिट्स बनाए, वो दूसरी बात है. ओके, पर ये आप समझ लो फिलहाल के लिए कि 1 अर्ग जो है वो लोएस्ट यूनिट है. किसका लोएस्ट यूनिट है? आपके फोर्स का. ठीक है, वर्क डन, ये वर्क डन है अर्ग. ओके, ये डाइन है फोर्स और ये सेंटीमीटर है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है. अगर हम इन दोनों
वैल्यूज को कंपेयर करें, जूल को अगर अर्थ के साथ कंपेयर करें, ठीक है, बड़े को छोटे के साथ कंपेयर करें, और अगर हम कन्वर्जन फैक्टर में ध्यान दें तो हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन अगर बोलेंगे तो 10⁵ डाइन होता है, करेक्ट। ये जो न्यूटन है इसको अगर हम डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁵ होगा। डू यू अग्री विथ मी नाउ चिल्ड्रन? ये इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो आपके किलोमीटर्स और मीटर से। अगर आप किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1000 का कितना होता है, 1000 का मतलब क्या है, 10⁵। 1000 के ऊपर 3 जीरोस है, राइट? तो टेंस के प्लेस में 3 जीरोस है तो 10⁵ मीटर्स। यस, बस यही कन्वर्जन है यहाँ पे, जीरोस का है। 10⁵ का मतलब क्या है, 10 के ऊपर और 5 जीरोस, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला लेके हम जूल को न्यूटन में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर उसी न्यूटन को उसके लोएस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज डाइन एंड सेंटीमीटर। सिर्फ न्यूटन को ही कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट को भी कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को लोएस्ट यूनिट में कन्वर्ट किया, तो 1 जूल को हमने 10⁷ डाइन में कन्वर्ट किया। तो 1 जूल का मतलब ये भी हो सकता है 1 न्यूटन और मीटर, और 1 जूल का मतलब ये भी हो सकता है 10⁷ अर्ग। अभी समझ में आ गया आपको क्लास? एम आई क्लियर सो फार? ऑल, एवरीबडी, यस, नो, सबसे मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। ऑल गुड? यस, ठीक है। कैन आई मूव अहेड विद न्यू टॉपिक? ठीक है। अभी अगर काम प्रॉपर डायरेक्शन में हुआ तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क हुआ है। अगर काम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क हुआ है। डू यू अग्री विथ मी? पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या होता है, नेगेटिव, राइट? अगर आप सीधे जा रहे हो तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो लाइफ में, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ गए तो हम बोलते हैं ना, वी आर अफेक्टेड बाय नेगेटिविटी। आप पीछे रह गए आखिर बाकी के सब लोगों से, तो आप क्या बोलते हो, वी आर गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? यहाँ पे भी सेम फंडा है। यहाँ पे क्लास पॉजिटिव नेगेटिव, और जो काम नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता है ना ये होता है नेगेटिव होता है, वी कॉल इट एज अ न्यूट्रल वर्क और जीरो वर्क डन। ओके, वहां पे न्यूट्रल चलते हैं हम, ना पॉजिटिव चलते हैं ना नेगेटिव चलते हैं। एक मुकाम पे आके लाइफ स्टेबल हो जाती है। अग्रीड एवरीबडी? सो फार एवरीबडी गुड विद दिस? ओके, अभी इसका हम फिजिक्स में मतलब देख लेते हैं कि इसका फिजिक्स में मतलब क्या है। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल, कैचिंग द बॉल विच योर फ्रेंड हैज थ्रोन टुवर्ड्स यू, tying a stone to one end of a string and swinging it round and round by another end of the string, walking up and down a staircase or climbing a tree, stopping a moving car by applying brakes। इन सारे एग्जाम्पल में हम क्या नोटिस करेंगे, that in some of the above example the direction of force and the displacement are same। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में प्लेस भी चेंज हुई है, ठीक है। बाकी केस में किसी में डायरेक्शन में जिसमें फोर्स अप्लाई किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन हुआ है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बाकी के केसेस में दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दे हैव नॉट चेंज एट ऑल। कुछ भी फोर्स अप्लाई करने के बाद फोर्स भी अप्लाई नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है। In this cases, the work done by forces follows. तो when we say there is a positive force, कभी बोलते हैं when the force and the displacement are in the same direction, तभी हम बोलते हैं the force is positive. Okay? तो एंगल कितना होगा, थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री। एंगल बनेगा दोनों का 0 डिग्री, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, सो फार एवरीबडी इज क्लियर? यस और नो? ठीक। अभी when force and displacement are in opposite direction, ठीक है, जब force और displacement जो है they are in opposite direction, that is 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनी है।
ठीक है, थीटा का एंगल बना है 180 डिग्री, द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव. ओके, द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव. आई होप मेरी पेंसिल चल पाती. आई वॉन्टेड टू शो यू समथिंग. स्टिल आई ट्राई वंस अगेन एक बार. कुछ भी नहीं कर सकते. हाउ बैड इट इज. ये फिल एंड साइन वाला भी बहुत बुरा है हाल इसका. चलो ठीक है, करी. एनीवेज, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना. आई एम जस्ट शोइंग यू. अगर आपका फोर्स जो है स्ट्रेट लाइन में अप्लाई हुआ है, ये फोर्स है, और ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, करेक्ट. तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क हुआ है. अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से, आपका पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट है और आपने फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, पर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज 180 डिग्री. ठीक है, तो हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन. डू यू अंडरस्टैंड नाउ? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे वर्क डन होगा. ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं. बट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड नॉट कॉज्ड एनी डिस्प्लेसमेंट, और force and displacement are perpendicular to each other, that is 90 degree, the work done by force is 0. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री बने हैं, तो हम क्या बोलते हैं, द वर्क डन इज 0. यहां तक सभी को क्लियर है क्लास? आई नो आई हैव यूज्ड अ वेरी बैड टूल, बट यहां तक सभी को क्लियर है? यस, ऑल गुड. ठीक है, समझने से मतलब है, टूल कोई भी हो. ठीक है. नाउ हियर टेक अ प्लास्टिक कप. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है. टेक अ प्लास्टिक कप यहाँ पे. नाउ एंड मेक अ होल इन सेंटर ऑफ इट. टेक अ लॉन्ग थ्रेड, ओके, and double it and pass it through the hole. Tie a thick enough knot at the end so that knot will not pass through the hole. ये प्लास्टिक कप के यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसको थिक इनफ ऐसे नॉट टाई की है, और इस कप के बीचों बीच, ठीक है, हमने थ्रेड को टाई करके पास किया है. ओके, हमने ये किया है. इसके बाद now the tie a thick enough knot in one end so that knot will not pass through the hole, taking care two loose ends are below the cup. यहाँ पे दो loose ends है जो कप के नीचे लटक रहे हैं. ठीक है. tie a nut to each of the two ends shown in the figure. यहाँ पे हमने फिगर में देखा है, जैसे बताया है हम वैसे ही करने वाले हैं. दोनों फिगर ए को देख लो. थ्रेड और नट, और कप के अंदर एक नट है. ठीक है. Now tie a knot on each two ends as shown in figure 2.4. Now do the following. As shown in figure A, put the cup on the table and keep one of the nut of cup and let the thread carrying the other nut hang down along the side of the table. क्या होगा जब ये कप ऐसे होगा तो क्या होगा? कप क्या होगा और नट का क्या होगा? यस क्लास. नोबडी स्टिल? अंदर कप के अंदर नट है और सेम नट नीचे भी थ्रेड से लटक रहा है. तो अगर कप के अंदर नट को टेबल पे रखा विदाउट एनी सपोर्ट और एक नीचे नट लटक रहा है, क्या होगा? कप का क्या होगा क्लास? नोबडी इज इंटरैक्टिव. यस, इट विल बी, इट्स अनबैलेंस. अनबैलेंस में क्या होता है? अनबैलेंस बराबर है क्या होगा? कप कहाँ जाएगा, नट कहाँ जाएगा, थ्रेड कहाँ जाएगा, दोनों के बीच बीच में एक्शन क्या होगी? नोबडी, रियली नोबडी. डिस्प्लेसमेंट होगा, कप विल ब्रेक. नो, कप विल नॉट ब्रेक. डिस्प्लेसमेंट होगा, आशिति करेक्ट. बट डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, क्या होगा? आप लोगों ने कभी देखा है, अगर आपका कप रखा गया है और अगर कप टेबल थोड़ा सा आड़ा हो जाता है तो आपका कप स्लिप होने लगता है. यहाँ पे तो नट टाई किया है एंड पे, राइट? तो डोंट यू थिंक आपका कप स्लिप होते होते लटकते हुए थ्रेड के डायरेक्शन में जाएगा? यस. यस.
निधि, आशिति, आयुष, करेक्ट। पार्थ, तो ये जो है ये स्लिप होने लगेगा, ठीक है, फिगर ए में, क्योंकि एक तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, दूसरा तो कप के अंदर भी हैवी नट है। नाउ put the cup on the table and keep one of the nut in the cup and let the thread carry and what will happen वो हमने देखा। अभी कप बी फिगर में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रूलर लगाई गई है इन द पाथ ऑफ कप एंड थ्रेड, ठीक है। अभी क्या होगा, जब रूलर लगाई गई है, दोनों थ्रेड एक ही तरफ है, रूलर लगाई गई है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कप का। आशिति, आयुष, पार्थ, यस, मनीष, निधि, रोहिदा, सोहम, सुषमा, डिस्प्लेसमेंट होगा, रूलर की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, कब मूव होने लगेगा, रूलर को एज ए ऑब्स्टेकल लगाया गया है, यस, नो, रूलर ने उसकी पाथ को ब्लॉक किया है, ठीक है। अभी हमने फिगर सी में क्या किया है, हमने जो दोनों थ्रेड एक तरफ लटक रहे थे, हमने उसमें से एक थ्रेड को एक साइड रखा है और दूसरे थ्रेड को दूसरे साइड रखा है, एक को राइट एक को लेफ्ट में रखा है, ठीक है। पर नट कप के अंदर है और रूलर हटा दी है, ओके। सो फिगर सी में क्या होगा, अभी बैलेंस होगा दोनों तरफ, एक लेफ्ट में एक राइट में है तो बैलेंस होगा। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? यस, ओके। तो ये यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। सो फिगर ए में हमने क्या देखा कि यहाँ पे सारा का सारा एक ही तरफ वजन आ रहा था, तो एक ही तरफ ये पुल किया जा रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ओके। फिगर बी में ऑब्स्टेकल आया, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन ऑब्स्टेकल आया, तो उस डायरेक्शन में नहीं गया कप, फोर्स नीचे से अप्लाई हो रहा है ग्रेविटी का। और फिगर सी में दोनों तरफ फोर्स इक्वल रहा है, इसलिए आपका कप जहां है वहां का वहां ही है, ठीक है। सो यहाँ पे ए, बी और सी में से कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव और कौन सा जीरो है, आप लोग मुझे बताइए इन द चैट बॉक्स। Write about figure A. It is positive, negative or zero work done. Write about B. Positive, negative or zero, and write about C. Positive, negative or zero. 10 seconds you have. First is positive, everybody. Yes, Ashiti, Nidhi, correct. Are they correct? Manish, Ayush? Yes. B क्या है? Figure B. Yes, correct, Ayush. Figure B क्या है, Manish? Yes, Manish, correct. Figure B क्या है? Negative. First is negative, Ashiti. Soham, correct. Second one is zero. No. Nidhi, no. Please evaluate. Second one क्या है? सेकेंड वन में ऑब्स्टेकल आ रहा है, नीचे से फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सो कैन वी से सेकेंड वन इज नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट, नेगेटिव। एंड थर्ड वन जहां पे दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है, ना राइट में जा रहा है ना लेफ्ट में जा रहा है, सो थर्ड वन इज जीरो वर्क डन। एक्सेलेंट क्लास, वेरी गुड, ओके। सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया है, सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, as gravitational forces acting on the satellite along the radius of a circle and its displacement along the tangent of a circle। आप लोगों को पता है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे मूव होता है, ओके। अर्थ की एजेस पे आपकी सैटेलाइट मूव हो रही है और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो टैंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सॉरी फॉर दैट, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस जीरो, करेक्ट, क्योंकि अंदर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, बाहर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस जीरो। सो व्हाट आर दीज इंस्टीट्यूशंस एट वर्क? द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली has conceptualized in 1943. Its function under the Council of Scientific and Industrial Research. It conducts basic research in various branches of physics and helps various industries and institutes engage in the developmental work.
इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। जो एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, इन सारी चीजों को ये इंस्टीट्यूट्स वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आर वी गुड विद दिस? सो फार सभी को समझ में आया कैसे हो रहा है? एवरीवन? यस? शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? What is the meaning of tangent? All right, I'll just stop. ठीक है, I hope I can activities नहीं, info नहीं, people नहीं, activities. ओके, tangent बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड। वन मिनट है क्लास। I'll share my screen here. 1 minute, I'll show you. All right. स्पर्शिक, क्या स्पर्शिक? अच्छा स्पर्शिक, ओके स्पर्शिक। एक सेकेंड रुको, आई शो यू। आई हैव अ बोर्ड हियर विथ मी, आई शो यू। आई एम रियली नॉट गुड विद दिस फोन। थोड़ा थोड़ा मैं सीख रही हूँ, तो प्लीज बेयर विथ मी फॉर 1 or 2 days मोर। वंस आई गेट यूज टू इट, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। एक मिनट। यू कैन सी माई स्क्रीन शेयर नहीं ना? ओके, देयर वी गो। No? Okay, now you will see that. Share screen, start sharing, start now. ठीक है, हम अगर जब भी यहाँ पे you all can see my board everybody? Yes? ये पहले ही स्टार्ट हो जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी। All right, चलो anyways. So here, okay, this is your circle, correct? ये सर्कल, ये आपका होता है सेंटर से लेके आपके एज तक, ये इसका रेडियस होता है जिसे हम नॉर्मली ओ और ए बोलते हैं। हाफ जो होती है, ये जो पूरी की पूरी होती है, यहाँ से लेके ए, बी से लेके ए तक आपका डायमीटर होता है, ये आपका कॉर्ड होता है, करेक्ट? जो टैंजेंट होती है वो ऐसे लाइन होती है जो आपके सर्कल के सर्कम्फरेंस को टच करके जाती है। ओके, जो टैंजेंट होती है वो क्या होती है? वो लाइन होती है जो आपके सर्कल के सर्कम्फरेंस को ऐसे टच करके जाती है। दैट इज कॉल्ड एज अ टैंजेंट। ये आपकी अर्थ है यहाँ पे, ठीक है? ये आपके सेंटर से जो ग्रेविटी बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, ये स्पेस है बाहर पूरा का पूरा। ओके, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है? ये सैटेलाइट, सैटेलाइट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक बाहर से भी फोर्स एक्ट कर रहा है, ओके, और एक अंदर से भी ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है। ये सैटेलाइट इसी वजह से ये पूरा का पूरा अर्थ की ऑर्बिट में घूमते रहती है। यहां तक सभी को क्लियर है? करेक्ट। जब ये सर्कम्फरेंस में अर्थ के घूमते रहती है, या अर्थ के ऑर्बिट जिसे हम बोलते हैं उसमें घूमते रहती है, दैट टाइम देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग। तो ये सैटेलाइट घूमते घूमते ही रहेगा, इसमें से एक भी फोर्स कमजोर पड़ गया अंदर या बाहर का, तो आपकी सैटेलाइट इजेक्ट हो जाएगी स्पेस में। ओके, सो इसी वजह से हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम सैटेलाइट को टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब है आपकी ये जो अर्थ है यहाँ पे, दिस अर्थ, ये सेंटर से ग्रेविटी यहाँ पे आपकी सैटेलाइट लोकेटेड होती है, बाहर से ये इस डायरेक्शन में घूमती है, तो हर बार ये इस डायरेक्शन में ही घूमते जाएगी। अर्थ के ना अंदर जाएगी, ना सरफेस ऑफ द अर्थ पे फॉल होगी, ना स्पेस में इजेक्ट हो जाएगी। यहां तक सभी को क्लियर है? यस क्लास, अंडरस्टूड व्हाट इज टेंजेंट? ओके, एनीथिंग एल्स यू विश टू आस्क मी? ओके, अबाउट द एक्टिविटी, जो हमने एक्टिविटी देखी थी, ठीक है? 1 minute, आई क्लियर द बोर्ड। ओके,
जो हमने एक्टिविटी देखी थी, एक्टिविटी ए में क्या हुआ था क्लास? ओके, आपकी एक्टिविटी ए में ये जो ग्लास था, तो ये ग्लास के बीचों बीच एक होल किया गया था, और ये पूरे के पूरे टेबल के ऊपर इस दोनों थ्रेड को, थ्रेड दो थे वहां पे, ठीक है, इन दोनों थ्रेड को इस टेबल के डायरेक्शन से नीचे नट के साथ हैंग किया था। एक नट अंदर था, एक नट बाहर था। ऑप्शन बी में क्या हुआ था, ये ग्लास, सेम ग्लास लिया था, उसके अंदर होल था, ठीक है, उसके अंदर से जो थ्रेड निकल रहे थे, दोनों भी थ्रेड वापस सेम डायरेक्शन में थे, पर यहाँ पे एक डिफरेंस था कि इसके बीच में एक रूलर आ गई थी, ठीक है। फोर्स नीचे से अप्लाई हो रहा था, लेकिन ये रूलर थी जो फोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से ग्लास की मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रही थी, पर इधर ग्लास की मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही थी। और सी में क्या हुआ था आपके, ग्लास सेम था, ठीक है, उसके बीचों बीच नट था, लेकिन अभी यहाँ पे एक डिफरेंस ये हुआ था कि इसके दो थ्रेड, एक लेफ्ट में जा रहा था, एक राइट में जा रहा था, दोनों के पास सेम साइज का और सेम वेट का नट था, ठीक है। तो ये लेफ्ट पे और राइट का फोर्स इक्वल बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीरो एक्शन हो गई। ये आपको एक्टिविटी समझ में आ गई अभी? यस। सो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो ए था वो पॉजिटिव वर्क डन था, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा था। बी में ऑब्स्टेकल आ गया था, तो नेगेटिव वर्क हो गया था। और सी में दोनों तरफ इक्वल हो गया था, तो यहाँ पे जीरो वर्क डन हो गया था। सो फार इट इज क्लियर एवरीवन? यस। एनीथिंग यू विश टू आस्क मी? लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। नो डाउट? ऑल गुड? अगली बार ये बोर्ड ओपन करके ही रखूंगी, ये कब से ओपन ही नहीं हो रहा था। चलो, you may leave the class. Those who are having doubt can wait and ask me doubt. We still have 3 minutes to go. 2 minutes to go. Bye, students. Bye bye. Okay.